introduce yourself. Sir, my name is Kritika Chaudhary. I am born from Lucknow, and I have completed all of my schooling from class till class 12 from Lucknow itself. After that, I pursued my graduation as Bachelor of Commerce from Lucknow University. And after that, sir, I have pursued teaching course, and currently I'm assistant teacher in basic education department. Where? Basic education department, assistant teacher. Posted? So currently I'm posting in Bharat. And so, since you are teaching, so what made you interested in civil services? Why you want to join? So earlier also I wanted to join civil services. That is the reason I've been preparing also and I've been studying also. You have been preparing. And what's your preference? Order of preference, care? So first my preference is deputy collector. Thereafter it is DYSP. Third it's ARTU. In that order, sir. And In that order. in that order. Why this gradation? Sir, I think this is the most prestigious services of Uttar Pradesh. That is the reason I have made this list. And say, what is the say scope of the job of each of them? Can you just in a form of just all three jobs which you have mentioned? What is the scope of the work of deputy collector, deputy SP, and ARTO? Sir, the post of deputy collector is majorly for land order management and revenue collection, basically. And for DYSP, it is to maintain law and order. And the third one, that is ARTO. He is the regional transport officer. In that order, he make some work in the transportation sector. What kind of Issue licenses, sir, to motor vehicles and commercial vehicles. And do you know the motor vehicle act or something? Have you some motor vehicle act 1988, it is now being amended. And the major amendments are right now not able to. say suppose if you get the deputy SP, what exactly would be your priority area? Say three priority areas. So my three priority area first would be to ensure women's safety. Second would be to maintain law and order and to contribute myself into the service, whatever demands for. Okay. So first you said that women's safety. How will you ensure that? So, What measures will you take to ensure that? so right now government is has come up with most of the schemes for women safety. तो उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी और Say पेट्रोलिंग name say 2 to 3 schemes which are related to women's safety, which you will say you will take it forward. Which are those 2 3 schemes? so one first one would be the pink patrolling that is done. I am not read about it. Second thing you said law and order. And what is law and order? The law and order is a mechanism wherein the Maintenance of law and order. Or law and order is a mechanism. Which of the two is a mechanism? maintenance of law and order. Okay. Sir, it ensures peace and stability in the uh, public sphere. How will you do it? सर जो भी स्कीम्स चल रही होंगी उस टाइम पे या जो भी गवर्नमेंट Law and order is a more related to breakdown of some kind of a existing system. all the legislative laws that are there उन सबको implementation में Is that law and order? sorry sir I'm not Acha, as a deputy collector, what would be your priority areas?
सर एज अ डिप्टी कलेक्टर मैं ये इंश्योर करूंगी कि सारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही प्रॉम्प्ट हो और ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, एफिशिएंटली लोग काम करें और जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको मैं और स्ट्रेंथन करूंगी। कैसे करोगे? सर Marketing? by the use of digitalization. The exact roadmap of functioning, sir, I'm not prepared. See, in your area, say this exercise of special, okay, SIR, let's just put it this way. What exactly Sir, is it? सर SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसमें हम लोग वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं. इट इज नॉट ओनली द मेजर टू इंक्लूड एक्सक्लूड समवन इन दैट मैटर और उसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं हम उनकी वोटिंग राइट्स को इंश्योर करें. You are BLO also? No, sir, I am not posted as PLO, but I have assisted in that work. Yes, yes. And then this UGC, there's something which has come up about UGC, some equity scheme or something. What is that? सर यूजीसी का एक मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे जहाँ पे एंटी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जो लोग बोल रहे हैं कि पहले कोई गाइडलाइंस इशू हुई थी 2012 में उसको यूजीसी ने अंडरटेक नहीं किया. उन गाइडलाइंस में सर ये था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन एससी एसटीज को लेके अगर कॉलेज ये में SC? एससी एसटी ओबीसीज ऑल थ्री तो अगर उनको लेके वो जो गाइडलाइंस थी उसको यूजीसी ने नहीं माना ऐसा सुनने में आ रहा है. तो इन सब चीजों को लेके बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं तो लोग उसको इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. What's your view? सर माय व्यू इन दिस एरिया वुड बी कि कोई भी मेजर लेकर आए गवर्नमेंट या जो भी चीज इम्पोज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के डोमेन में होना चाहिए और Constitutional morality. You have used another word. What is that constitutional morality? सर the constitutional morality is a framework wherein all the measures will be taken which sustain the constitutional laws. Sudeep, सर आई वुड लाइक कि ये बाइलिंगुअल चले. ठीक है. You can answer, तुम आंसर कर सकती हो. मान लो हम अंग्रेजी में पूछे तो हिंदी में जो जवाब. आपने इंग्लिश लिखा था इसलिए इंग्लिश में It was English, but right now I'm not getting very comfortable with English. So बात तो तुम्ही ने दिया ना अंग्रेजी लिख के. अच्छा ये बताओ तुमने फॉर्म ठीक से क्यों नहीं भरा? सर आई वॉज इन टू मच हरी दैट डे. उस दिन का ये फॉर्म है. Had it ऐसा been today क्या? तो मैं अच्छे से भरती. पता नहीं लिखा तुमने. कितनी देर लगती है फॉर्म भरने में? और आज मैं सोच रही थी दोबारा भरने के लिए उन्होंने कहा ठीक है चल जाएगा. कुछ भी मतलब. और तुमने फादर की सर्विस, फादर क्या करते हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट में है. क्या है? पोस्टल असिस्टेंट है सर. अच्छा, पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं. अब तुम्हारा क्वालिफिकेशन भी नहीं लिखी हो. कितने अटेम्प्ट तुमने दिया? सर दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट. सेकंड. फर्स्ट में क्या हुआ था? सर मेंस में नहीं हुआ था 2022 में. प्री किया था. प्री हो गया था सर, मेंस में नहीं हुआ था. अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी. और ये टीचर बनने टीचिंग के बने हैं सर बीटीसी किया है फ्रॉम डाइट लखनऊ. दैट लखनऊ. दैट इज कॉमनली नोन एज डीएलएड. हाँ, ये जो तो किस स्कोर पे आपका सिलेक्शन हुआ था? सॉरी सर. टीचर बनी थी जी. ना, तो उसमें कट ऑफ होता है ना कितने नंबर तक कर लेंगे, इतने नंबर तक लेंगे. आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था टीचर में? सर सिलेक्शन हुआ था, हम लोग का एक रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था इन 2019. और उस रिक्रूटमेंट एग्जाम का नाम क्या है? उसका नाम है सर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2019. सीईटी उसी को बोलते हैं? हाँ टीईटी सर एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है. उसके बाद एक रिक्रूटमेंट एग्जाम था. तो उस TT रिक्रूट हुआ था? टीईटी हुआ था सर. बता क्यों नहीं दी? पूछ रहे थे ना.
उसमें क्या स्कोर आया था, क्या रैंक आया था? सर TET was a 150 number test, उसमें 112 आए थे. 112 है। It was only for मतलब हाँ qualifying nature का है. सर्टेन हाँ परसेंटेज क्वालिफाइंग हो जाता है। qualifying nature. मेन एग्जाम में क्या आया था आपका? Sir, this I exactly don't remember right now. ये तो बड़ा कठिन जवाब है तुम्हारा। सर ये मुझे वास्तव में रैंक याद नहीं, ओके चलो क्योंकि ठीक। सर 69,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, हम्म, उसमें 10,000 समथिंग में मेरी रैंक थी. तो मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जब भरवाया इन्होंने तो लखनऊ में 0 सीट थी, इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस बाराबंकी था. तो बाराबंकी में जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ तो विमेंस को उसमें प्राथमिकता दी, तो मैंने अपने घर से एडजॉइनिंग एरिया देवा ब्लॉक में स्कूल को ले लिया. ठीक है। आपको अधिकारी बनना है, तो आपको क्यों अधिकारी बनाया जाए? सर मुझे आप बताएंगे ना कि हम सब इसलिए डिजर्व करते हैं। अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग में से 5 आदमी सेलेक्ट करना है, तो आप में क्या खासियत है कि आपको अधिकारी बना दिया जाए? सर क्योंकि मैं 6 साल से मेरे पास एक बहुत अच्छा जॉब में एक्सपीरियंस है, और हम लोग सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी काम करते हैं, चाहे हमारा सेंसस हो, चाहे कोई हाउस होल्ड सर्वे हो, चाहे SIR का काम हो. तो एक सर एक एक मिनट। सर, आपने कहा मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है, तो जब बहुत अच्छा जॉब है तो इस अच्छे जॉब में क्यों आना चाहते? सर राज्य सरकार का सर्वोच्च सेवा का क्षेत्र है ये, तो ये प्रेस्टीज बहुत अच्छी है और इसमें अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की. हमारे डिपार्टमेंट में भी सर अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की, लेकिन वो बहुत सीमित स्तर पे है. ओके। जी, क्योंकि हम सिर्फ अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित रहते हैं. हम्म, मुझे लगता है सर ये जो जिस तरह तैयारी और अपना जॉब को मैंने साथ में लेके चला है, तो मुझे लगता है मैं बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हूँ. ओके। हम्म. अब दूसरा ये बताइए आप कि आप तो गांव के स्कूल में जाती हैं, तो जातिगत भेदभाव इतना क्यों है गांव में? जाति का तो है ना, आप भी जी रियलाइज जी करती सर. होंगी। जी क्यों है इतना ज्यादा, जबकि भारत आजाद हुए इतना साल हो गए, लोग पढ़ भी लिए, लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, तो इतना जातिगत द्वेष और भेदभाव क्यों है गाँव में? सर, गांव में अभी भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि पेट्रियार्की अभी भी सस्टेन कर रही है. क्या चीज? पेट्रियार्की अभी भी सस्टेन कर रही है, और जो उन क्या लोगों सस्टेन कर रहे हैं? पेट्रियार्की, सत्ता पिताजी सर्विस तो कहीं ना कहीं इंटरजनरेशनल माइंडसेट वो लोगों का बनता चला कौन आ सा रहा है. माइंड? इंटरजनरेशनल, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो एक ये चीज मैंने ये चीज देखी है कि हम लोगों के पढ़ने लिखने से मात्र नहीं काम चल रहा है, लोग उस चीज को अपने एकदम जेनेटिक हाँ प्रेजुडिसेस चलते आ रहे हैं. तो इसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या है? सर इसका इफेक्ट तो सही नहीं है. क्या है कुछ शब्दों में? कुछ डिस्क्रिमिनेशन. एक दो एग्जाम्पल दे दो। सर पहली बात तो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाते हैं, Correct. जो जो उनको मिलना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग सर कि वो सोसाइटी में एक निग्लेक्टेड सोर्स हो जाते हैं, जो भी जिसको भी किया जा रहा है वो एकदम निग्लेक्टेड हो जाएगा, तो वो अपनी यही कास्ट साइकिल में ही रिवॉल्व करते रहेंगे, मतलब वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं. तो आप टीचर हो, तो आप अपने स्कूल में इसको कैसे इम्प्रूव करती हैं? सर जैसे आपके यहाँ तो सारे सेक्टर के जी बच्चे सर. आ रहे हैं, जी सर. तो स्कूल में इसको कैसे बैलेंस करती हो सर हम कि लोग सबको प्राथमिकता रहे, सब बच्चे अच्छे? हाँ सर एक वैसे तो इसका कोई अलग से मेजर लेने की जरूरत नहीं है, इसको हमें एज अ कल्चर लेने की जरूरत है. जैसे हमारे यहाँ सर स्कूल में ही MDM चलता है, इसको PM पोषण अब नाम दे दिया गया है. तो कास्ट पहले जब ऐसा होता था सर, मैंने सुना है अपने सीनियर्स से कि पहले कुछ बच्चे अलग खाना खाते थे, कुछ बच्चे अलग खाना खाते, लेकिन अब हम लोग ने एक कॉमन किचन शेड बनवाया है जिसमें सारे बच्चे साथ में खाना खाते हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. तो ये एक सर तरीका है. दूसरा सर एडमिशन के टाइम पर हम लोग कोई भी
कैटेगरी पूछते ही नहीं है, सबसे पहले उसका एनरोलमेंट करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे होता है सर, अब प्रेरणा पोर्टल जिसका कॉमनली नाम है। तो उसमें कैटेगरी वाइज जब चीजें भरते हैं तो वो हम रजिस्टर में बाद में भरते हैं, लेकिन पहले उसको ऑनलाइन कर ही देते हैं। पहले एडमिशन के टाइम पे भी सर ये चीजें नहीं हो पाती। ओके। अभी जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, भारत सरकार में या उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ऐसी नई चीज आई हो जिसकी बहुत चर्चा हो रही है? सर एक चीज मैंने अभी पढ़ी थी न्यूज़पेपर में रिसेंटली, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है यूनिवर्सिटी टाउनशिप का कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि क्या है मेरे ये? डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहता है तो थोड़ा सा मुझे उसमें इंटरेस्ट था सर। जो बजट में आया, जी सर, क्या है न्यूज़पेपर ये? सर यूनिवर्सिटी टाउनशिप का मतलब ये होता है कि 5 यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश की जाएंगी, जिसके पेरिफेरल जोन में बहुत उत्तर सारे प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में? सर यूपी में अच्छा, आज ठीक है। यूपी बजट में सर विशेष था ये, मुझे बहुत फैसिनेट किया तो मैंने उसको अच्छे से रिसर्च कर लिया। 5 सर ऐसी यूनिवर्सिटीज बनेंगी जिसके पेरिफेरल जोन में इंडस्ट्रियल एरिया होगा। उन यूनिवर्सिटीज में ऐसा एजुकेशन प्रोवाइडेड होगा जो काफी कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड एजुकेशन होगा, जिससे उनका स्वरोजगार बढ़ेगा। तो ये चीज सर मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये चीज मुझे मैं चाहती हूँ स्कूल स्तर पे भी सर ऐसा कुछ हो जाए कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स को हम लोग और अच्छे से बच्चों के अंदर इंक्लूड। इनमें कुछ है ऐसे इसके बारे हाँ में? सर, ऐसा है। एनईपी एनईपी में क्या है? सर, एनईपी में ये बोला गया है स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। शायद 1 वीक में 1 आवर का एक सेशन चलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे सर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं आया है। सिर्फ इसमें एक चीज जो अभी मुझे रिसेंटली याद आ रही है, तो उसमें एक इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यक्रम है, अटल इनोवेशन मिशन वाले चला रहे हैं। उसमें सर एक प्रोग्राम अभी हम लोग ने भी स्कूल में किया था, क्योंकि गाइडलाइंस आई थी कि हमें करना है, उसको कहते हैं बिल्डाथॉन। बिल्डाथॉन सर एक ऐसा कार्यक्रम है जो जिला स्तर तक जो बच्चे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें उनका इनोवेशन होगा, तो वो जब जिला स्तर पे सिलेक्ट होंगे तब वो अटल इनोवेशन मिशन में वो प्रोग्राम आगे जाएगा, मतलब जो भी चीज उन्होंने बनाई है। सर हमारे ही ब्लॉक से एक सिलेक्शन हुआ है इसके लिए, तो उसमें लेमन टिकर उसने बनाया था फ्रॉम दिस प्लास्टिक बॉटल। तो वो चीज सर बहुत, ये चाइना में शायद ये इक्विपमेंट है, ये 5000 का शायद मिलता है, और वो इस रीयूजेबल प्लास्टिक बॉटल से इस बच्चे ने बनाया था फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। चलो। कृतिका, आपने ये पॉक्सो एक्ट पढ़ा है? सब, हाँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस है सर क्या इसके है? लिए। बच्चों की मालूम प्रोटेक्शन, बना क्या है? कुछ मालूम इसका? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2013 सर। इसमें अभी एक सांसद का नाम आया था, उनका नाम मालूम है? क्यों आया था, किस पृष्ठभूमि में आया था? नहीं, सर पढ़ा होगा लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आपको रिकॉल नहीं सॉरी। होता। अच्छा, सेकंड ऑप्शन आपका एज ए पुलिस ऑफिसर है, जी ठीक जी। है ना? ऐसे पुलिस ऑफिसर को लेकर और विशेषकर महिलाओं के समस्याओं को लेके, वो ऐसी कौन सी समस्याएं जो आपके दिमाग में रहती है कि महिलाओं के समस्याओं को मैं एज ए पुलिस ऑफिसर दो समय में अपनी वरीयता दूंगी? सर मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है एज अ फीमेल, तो मैंने ये देखा कि लोग महिलाओं को सीरियस नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है, आप किसी भी दफ्तर में जाइए, यदि 2 लोग गए हैं, एक मेल और फीमेल, और उनका सेम इशू है किसी भी कंप्लेन को लेकर, तो ऐसा सर पता नहीं क्यों माइंडसेट है कि उस मेल हर एक टाइमली मिल जाएगी, और फीमेल को सोचेंगे कि अभी देखते हैं बताते हैं, सीरियस मतलब नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों अभी सर भी ऐसा आपको लगता है? होता है सर। ये बहुत ठीक, मॉडर्न सोसाइटी की बात सर मैं कर रही हूँ, ये सब चीजें आज तो भी। इसके लिए आप क्या करेंगे? सर इसके लिए तो उनका इंडिविजुअल का माइंडसेट चेंज करना तो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन ये मैं इंश्योर करूंगी कि मेरे दफ्तर में ऐसा ना हो।
गंभीरता से लिया जाए। हाँ। और महिलाओं की कौन-कौन सी समस्या दिखती है जिन्हें आप चाहेंगी कि ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए? और अंदर से आप काफ़ी सोच पा रही हैं, लेकिन चूँकि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप नहीं कर पा रही हैं। तो जब अथॉरिटी आपको बतौर पुलिस ऑफिसर मिलती है, तो क्या-क्या है? कुछ और बताइए इसमें? सर मैं इंश्योर करूंगी कि जितने अन्य डिपार्टमेंट है जिससे भी मेरा लिंकेज है या मेरा कम्युनिकेशन है, तो उन सब से मैं कोऑर्डिनेट करूंगी कि उस वर्क प्लेस पे किसी भी महिला के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी भी टाइप का फिजिकल अब्यूज ये सब चीजें ना हो। और तो ये एज अ एम्प्लॉय मैं उनको गारंटी करूंगी कि वो जहाँ काम कर रही है महिलाएं वो सेफ हैं। अभी भी आप महसूस करती हैं कि महिलाएँ सुरक्षित हैं? या अभी भी उनको लगता है कि नहीं, सुरक्षित नहीं है? सर इंटेलेक्चुअल और एम्पावर्ड वुमेन्स जो है वो सुरक्षा के दायरे में बड़ा रोल मतलब उनको ज्यादा सुरक्षा है इन कंपैरिजन टू द रूरल वुमेन्स, अनएजुकेटेड वुमेन्स एंड अनअवेयर्ड वुमेन्स। नहीं, मैं एजुकेटेड वुमेन की बात कर रहा हूँ। क्या वो अभी भी आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं कंपैरिज़न उसका ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आप लखनऊ में हैं, सिटी में हैं, ठीक जी है सर। ना? आपका मूवमेंट होता है, आप जाती हैं, कहीं आती हैं, तो क्या आपको अंदर से है कि सर आप मैं ये कहूंगी कुछ प्रपोर्शन में आज भी इनसिक्योरिटीज हैं। जी इनसिक्योरिटीज़ सर। हैं? सर हाँ, कृतिका आपसे सर ने पूछा था बतौर डिप्टी कलेक्टर अगर आप एसडीएम हैं तो क्या जी करेंगे, तो आपने कहा लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन बढ़ाएंगे और तुम बताते हो कितना लैंड रेवेन्यू एसडीएम कलेक्ट करता है, कितना टैक्स के रूप में अभी आ रहा है, या तहसील स्तर पर और कितने कितने टैक्स एसडीएम कलेक्ट कर रहा है, इसको आप बढ़ाएंगे? सर जो अभी मुझे याद आ रहा है वो है स्टैम्प ड्यूटी और जो इसके अलावा अभी तो नहीं आता मुझे। ड्यूटी और टैक्स में क्या फर्क होता है? लैंड रेवेन्यू ड्यूटी है कि टैक्स? ड्यूटी है सर। लैंड रेवेन्यू ड्यूटी है। सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो लैंड रेवेन्यू का कितना टैक्स के रूप में कलेक्शन होता है आजकल? अप्रोक्सीमेट मुझे क्या सर लगान वगैरह लिया जाता है? सॉरी सर याद नहीं आ रहा। सबकी थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अच्छा, आपने बड़ा एक शब्द इस्तेमाल किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, वो भी डिप्टी कलेक्टर के रोल से रिलेटेड था। डिप्टी कलेक्टर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा या क्या क्या रोल होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ जनरल फ्रेमवर्क जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या जो भी रिटन लॉज है उसको हम प्राथमिकता देंगे। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है कि नहीं? है सर। है। हाँ। फिर आपने कहा आप टीचर के तौर पर बहुत सारे काम करती हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, अपना जनगणना का काम करती हैं, आप इलेक्शन से रिलेटेड ड्यूटी, मतलब टीचर्स बहुत सारे मल्टीपल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। इसी की बड़ी आलोचना भी होती है कि साहब टीचर से टीचिंग छोड़ करके बाकी सब काम लिया जा रहा है। टीचर के पास अपना पढ़ाई लिखाई करने का समय नहीं है। टीचर का सारा काम रिपोर्ट बनाने में, सूचना देने में, आज ये काम किया, आंकड़ा, ये ऊपर खाली दिन भर रिपोर्ट बना के भेजते रहते हैं, उनमें ढेर सारे यही सब काम होता है, पढ़ाई नहीं होती। आप क्या समझती हैं कि टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए ये जो इनके मल्टीपल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको नहीं देना चाहिए, केवल टीचिंग पर ही इनका ध्यान रखना चाहिए, या ये ठीक है? सर मुझे लगता है कि अगर ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को एसोसिएट करती है या इन्वॉल्व करती है, एंगेज करती है, तो ये सही है सर। एमडीएम के बारे में हम लोग बहुत शिकायत सुनते थे, खाना अच्छा नहीं देते, खाने की क्वालिटी खराब होती है, जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे वैसे तो पूरा चार्ट बना है, टाइम टेबल बना है, इस दिन खिचड़ी मिलेगी, इस दिन पंजीरी मिलेगी, इस दिन हलवा मिलेगा, मिलता कुछ नहीं है, वही एक ही जैसा खाना हफ्ते के 7 दिन मिल रहा है। बावजूद इसके तमाम उसमें सोशल ऑडिट है, जांच है, सब है, कुछ होता नहीं। नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है ये चीज होती होगी कि न्यूज़पेपर में आता रहता है।
लेकिन सर हर जगह ऐसा नहीं है। और ज़्यादातर जो सहायक टीचर हैं वो टीचिंग नहीं करते, वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं या कुछ और में बिज़ी रहते हैं। क्या होगा? सर ये भी मैं डिसएग्री करती हूँ सर। जैसे कुछ दूर दराज के ब्लॉक्स में जो एकल विद्यालय है जहाँ एक ही टीचर है जिसको हेड बोलते हैं, तो वो मतलब एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है ये जो आपने बताई कि उन स्कूलों में ये होता होगा कि में टीचर का एब्सेंटिज्म बहुत बड़ा हाँ होता एब्सेंटेज है। टीचर जाते ही नहीं। सर ये जो कोलोकेटेड एरियाज हैं जो सिटी से लगे हुए हैं जितने स्कूल्स हैं और जो भी ठीक ब्लॉक्स हैं वहाँ पे ये समस्या नहीं है। ये बिल्कुल जो रूरल सेटिंग में जो स्कूल्स हैं एकदम बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे ये दिक्कत होती तो है। सरकार का करोड़ों रुपए का बजट प्राथमिक शिक्षा का हर साल है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ रही। और अभी हाल में सरकार ने अपने प्रदेश में तमाम विद्यालयों को बंद कर दिया। बताया कि वहाँ बच्चे कम हैं या कुछ और कारण बताए। ये सही है, विद्यालय अगर हम प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, बच्चों में साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं, शैक्षणिक स्तर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम विद्यालय ही बंद कर देंगे तो कैसे होगा? इतनी दूर किसी का 5-6 किलोमीटर दूर है कहीं का, कैसे जाएगा बच्चा? कौन छोड़ने जाएगा? कैसे वो आएगा घर वापस पढ़ाई से? सर ये जो बात आपने अभी कही कि स्कूल बंद हो रहे हैं, अखबारों में से स्टैंड्स पे बोला गया है कि विद्यालय बंद हो रहे हैं या इंग्लिश में देख लें तो उसको कहा गया है मर्जर। लेकिन सरकार की मंशा किसी स्कूल को बंद करने की नहीं थी। उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था मर्जर को लेके वो था स्कूलों की पेयरिंग करना। लेट मी इलैबोरेट सर। सर आरटीई एक्ट 2009 में ये चीज है कि अगर 300 स्टूडेंट्स किसी विलेज में हैं तो 1 किलोमीटर पे स्कूल होगा। ये प्रावधान था। लेकिन अब सर सिचुएशन ये है कि बच्चों की संख्या बढ़ गई है या कुछ जगह पे बच्चों की संख्या कम हो गई प्रोपोर्शन वाइज। तो वहां पे सर जो 1 किलोमीटर के अंदर 2 स्कूल खुले थे या 3 स्कूल खुले थे बेसिक शिक्षा के, उनको एक स्कूल कर दिया गया। खुले ही क्यों? सरकार को पहले ही आंकड़े बता रहे हैं। नहीं सर पॉपुलेशन जैसे चेंज होता है। हाँ जैसे चीजें इनवेरिएबल टर्म्स में थी इसलिए तब ये अनुमानित था कि 3 चल जाएंगे। लेकिन उसके बाद सर ये चीज नहीं, तब देखी गणना गई में गलती हुई, चूक हुई। सर पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है ना। हाँ, फिर अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जी स्कूल बढ़ने चाहिए। नहीं सर बढ़े या घटे नहीं है स्कूलों में पेयरिंग हो गई है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 2 स्कूल्स हैं दोनों में 4-4 टीचर्स थे और उसी प्रोपोर्शन में बच्चे थे। उन दोनों को मिला के एक स्कूल कर दिया गया। और 8 के बजाय 6 टीचर। हाँ 8 के बजाय नहीं नहीं 8 6 नहीं सर उसमें टीचर्स तो किसी को फिर डिक्लोज पेयरिंग से फायदा घाटा क्या हुआ? पेयरिंग से जो एज अ टीचर मुझे फायदा लगा है कि जैसे मान लेते हैं ए स्कूल है और बी स्कूल है। ए स्कूल में क्लास फर्स्ट में 10 बच्चे हैं, बी स्कूल में क्लास फर्स्ट में 20 बच्चे हैं। अब जब हमने इसको कलेक्टिवाइज कर दिया सर तो हो गया एक 30 क्लास बच्चे। 30। तो जो जब हम 30 बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमारी एफिशिएंसी हाई है। ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज तो बच्चे तो उसमें से 10 आएंगे नहीं क्योंकि स्कूल दूर हो गया पेयरिंग के नाम पर। नहीं सर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई और उसके लिए टीचर्स परसुएट करेंगे गार्जियंस को मोटिवेट करेंगे या कोई अन्य मेजर्स लेंगे। जो स्कूल खाली हो गया उसका क्या करेंगे? वो सर अंडर गवर्नमेंट वो चीज चली जा रही है वो बंद हो जा रहा है। तो वो तो खड्डा हो जाएगा। वो तो लैंड प्रॉपर्टी में आ ही जाएगा government। इतना बड़ा पैसा लगा है उसमें, वो तो गाँव में खिड़की दरवाजे सब उखाड़ लिए जाएंगे। नहीं सर वो सीज हो जाएगा। क्या मतलब चीज हो जाए? जो बंद हुआ है विद्यालय सीज हो जाएगा उसमें। खिड़की उनकी सरकार लेके चली जाएगी। अब मैं भी स्कूल डेवलप करे फ्यूचर में स्किल डेवलपमेंट से कुछ एलयू आप इतने समय पढ़ी हैं, क्या है यहाँ का लोगो और मोटो? यहाँ पे एलयू का सर ये तो एक सिंबॉलिक चीज है और मोटो सर है लाइट एंड लर्निंग। ऑल द बेस्ट। ठीक है कृतिका, योर इंटरव्यू इज ओवर।